Good morning, dear kids. Today I am taking your exercise 21C, that is for solids. In that, we are taking with problem number 1, which says each face of a cube has perimeter equal to 32. हर एक फेस का perimeter 32 है and we know that cube is made up of what? It is made up of square. मतलब हर एक square का perimeter दिया हुआ है 32. How to find the sides? So naturally we'll divide by 4. So I'll get each side of cube. Correct? So I'll get each side of cube as 8 centimeter. Once I got that, you have to find the surface area and volume. What is surface area? Surface area is 6 side square. So you have to put 6 into 8 into 8 and get the value. And for volume, you have the formula for a cube. A cube, that is a side cube you can write, that is side into side into side. That will be 8 into 8 into 8. Correct? Next we have a school auditorium is 40 meter long, 30 meter broad and 12 meter high. School auditorium hai. We have the dimensions given. 30 meter long, length is given 30, length is given 40, breadth is given 30, height is given 12. If each student requires 1.2 meter square of floor area, so हर एक स्टूडेंट अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसको लगती है एरिया 1.2 मीटर स्क्वायर. Find the maximum number of students who can be accommodated in this auditorium. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस ऑडिटोरियम में खड़े हो सकते हैं. फॉर दैट व्हाट यू विल डू माय डियर किड्स, यू विल टेक टोटल एरिया ऑफ, इफ़ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ सकते हैं, तो यू विल टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच स्टूडेंट, एरिया ऑफ ईच स्टूडेंट. Area of hall will be what? Length into breadth. Area required by each student 1.2 meter square. आपके पास length है, breadth है, डालो, उसमें से जो value आएगी that will be number of students. In this further problem, it is also say that you have to find the volume of air available in the auditorium. Volume अगर find करना है तो we have to go for length into breadth into height. So when you multiply length into breadth into height, what you will get will be the volume of auditorium. Problem number 3 says the internal dimensions of a rectangular box are length is 12 centimeter, breadth is x centimeter and height is 9 centimeter. If the length of the longest rod that can be placed is 17 centimeter. Now if this is a cuboid, इसका जो longest rod है वो होता है इसका diagonal, ये longest rod. ठीक है, इसका हम लोग के पास formula है. What is the formula for the longest rod? Longest rod, or you can say diagonal of a cuboid, it is under root L square plus B square plus H square. Yes, longest rod value is given as 17, under root, length is given as 12, so make it square, breadth we have x, so make it square, and height we have 9, so make it square. Now this square root will come on this side as a root, so that will be 17 square. This square root will come this side as a square, not as a root. It will come on this side as a, मतलब अगर आपको square root एक side का हटाना है तो we do it by squaring on both sides. तो वहाँ का square root हट जाता है और वो square root 17 के ऊपर square बन जाता है. Getting my point? So it will be something like this. Once you solve this, my dear kids, you will get the value of x square, which will be 64, and x will be root of 64, that is 8. तो x मतलब आपको find x करना है तो x की वैल्यू आ गई. The only important thing in this problem was the formula for your diagonal, the longest rod in the cuboid. Problem number 4, which says the internal length, breadth, height are given to you. Find the largest number of cubes which can be placed inside the box if the edge of each cube is 3 centimeter or 4 or 5. अब internal dimensions पहले लिख लेते हैं. Internal length is 30. Internal breadth is 24 and internal height is 15 centimeter. Got my point? So what will be volume?
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, that is 30 into 24 into 15. So from there you will get volume of box. Now volume of this cuboid. Now it is said find the largest number of cubes that can be fit in the box if the edge of cube is 3 centimeter. तो आपका बॉक्स में अगर आप इसको डाल रहे हो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स इस बॉक्स में आएंगे, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर ये बॉक्स है हमारा, ये जो बड़ा बॉक्स था हमारा क्यूबॉइड, उसके लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे हैं, द लेंथ इज दिस इज हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज विथ, सो 30, 24 एंड 15। अच्छा, अब जो मैं अंदर क्यूब्स डाल रही हूँ 3 सेंटीमीटर वाले पहले डालूंगी, तो 3 सेंटीमीटर वाले जो क्यूब्स डाल रही हूँ अगर वो क्यूब्स मैंने लेंथ वाइज किए तो कितने 3 सेंटीमीटर के क्यूब्स लेंथ वाइज आएंगे, सो वी विल डू 30/3, दैट इज 10 क्यूब्स आपके लेंथ वाइज आएंगे। अगर मैं हाइट वाइज डाल रही हूँ तो कितने क्यूब्स आएंगे, तो 15 आपकी बॉक्स की हाइट है, क्यूबॉइड की हाइट है, अपॉन 3, तो 5 क्यूब्स आपके हाइट वाइज आएंगे। और पीछे की तरफ अगर मैं क्यूब्स रख रही हूँ 3 सेंटीमीटर वाले तो इट विल बी 24/3, दैट विल 8 क्यूब्स आपके पीछे की तरफ आएंगे। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स यू गॉट, 5, 10, 8. Now you have to multiply 10 into 5 into 8 to get with the total number of cubes that can be placed inside this box. That cubes are of what is the dimension of that cubes? The dimension is, the side is 3 centimeter. तो मैंने क्या किया, अपने लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ जो क्यूबॉइड था जिसमें हम लोग को ये क्यूब्स डालने थे उसके ही मैंने डायमेंशंस के साथ इसका डायमेंशन डिवाइड कर दिया ताकि मुझे नंबर आ जाए। तो मेरे पास अगर मैं लेंथ वाइज क्यूब्स को रख रही हूँ तो मेरे नंबर हैं 10 क्यूब्स, अगर मैं हाइट वाइज रख रही हूँ तो मेरा नंबर है 5 क्यूब्स, अगर मैं पीछे ब्रेथ की वाइज रख रही हूँ यही क्यूब्स 3 सेंटीमीटर वाले तो मेरे आएंगे 8 क्यूब्स। और अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिए, इसीलिए मैं 10 into 8 into 5 करूँगी, दैट विल बी 400। तो 400 number of cubes of side 3 centimeter can be put into this box. Clear? बाकी सिमिलर मेथड आपको फॉलो करना है, साइड 4 सेंटीमीटर एंड साइड 5 सेंटीमीटर क्यूब डालना है इसके अंदर। ओके, लेट्स सी व्हाट फिफ्थ सेज। फिफ्थ सेज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 112। तो मैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड डाल देती हूँ, लेंथ है आपका 112, ब्रेथ है आपका 62, A cubical tank of edge 6 meter is dug of each 4 corner. तो यहाँ पे 6 मीटर का डगिंग हो रहा है 4 कॉर्नर्स से, ठीक है, एंड ऑफ द फील्ड एंड अर्थ इज रिमूव्ड। इसमें से जो मिट्टी निकाली जा रही है इट इज़ इवनली स्प्रेड, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे हम लोग वहाँ की मिट्टी निकाल के हम लोग इस शेप में उसको स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, यू हैव टू फाइंड द राइज इन लेवल, कितने राइज इन लेवल हुआ है। सो नाउ व्हाट यू हैव डन, जो आपने क्यूब साइड से कट किए हैं उनका मेजरमेंट क्या है, 6 है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच टैंक, इसकी एरिया हो जाएगी 6 into 6 36 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसकी भी 36, इसकी भी 36, इसकी भी 36, करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग ने कितना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी डग किया है, जब आप अर्थ की मिट्टी निकालते हो तो हम उसका वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 6 into 6 into 6 दैट इज़ 216। और ऐसा वॉल्यूम कितना रहेगा 216 into 4, क्योंकि आपने 4 क्यूबिकल टैंक्स डग किए हैं, ये 1 2 3 एंड 4, तो 216 into 4 दैट विल गिव यू 864 मीटर क्यूब का आपका अर्थ लेवल है, मतलब अर्थ मिट्टी निकल रही है इनमें से। ओके, गॉट द पॉइंट, क्लियर। ओके, नाउ आपको यही मिट्टी जो आपने कॉर्नर से निकाली है आपको ऊपर इवनली स्प्रेड करनी है। किसके ऊपर स्प्रेड करनी है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ स्प्रेड करनी है। अब टोटल इसकी एरिया ले लेते हैं जो हम लोग का रेक्टेंगल है, तो उसके डायमेंशंस हैं 112 into 62, करेक्ट। तो इसकी एरिया हम लोग की आएगी 6944 मीटर स्क्वायर। उसमें से आपने 4 ये कोने कट कर दिए हैं तो चारों की एरिया माइनस कर दो। एक की एरिया है 36,
4 की एरिया हो जाएगी 36 इंटू 4, दैट इज़ 144। गॉट माई पॉइंट। तो रिमेनिंग आपका बचता है 6800 मीटर स्क्वायर। तो मतलब रिमेनिंग पार्ट जो मैं पर्पल कलर से कर रही हूँ वो आपका रिमेनिंग पार्ट है। तो रिमेनिंग पार्ट की एरिया आ रही है आपको, कितनी एरिया आ रही है 6800 मीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर आपने डाला है क्या, आपने डाला है ये सारा मड, और आपको बताना है कितना लेवल ऑफ हाइट इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल से दैट वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग प्लॉट is equal to volume of earth removed, earth मतलब मिट्टी, earth removed from 4 sides. Volume of earth removed from 4 sides it's 864, करेक्ट। और वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ तो हमारे पास है कैसे, वो 6800 वही तो है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वहाँ पे आप डाल दो 6800 इंटू हाइट इज इक्वल टू 864। नाउ हाइट को यहीं पे रखो, 6800 को यहाँ पे डिवीजन में लेकर जाओ, तो इससे आपको हाइट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप एक लैंड के कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स में से मिट्टी को निकाल रहे हो, और जितना रिमेनिंग पार्ट है लैंड का वो 4 कॉर्नर्स को छोड़ के उसके ऊपर वही मिट्टी बिछा रहे हो, तो कितने हाइट की मिट्टी बिछेगी, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट। तो मैंने क्या किया, पूरे एरिया में से, पूरा जितना हम लोग का 112 इंटू 62 था, उस एरिया में से 4 कॉर्नर्स की एरिया पहले सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। 4 कॉर्नर्स की एरिया कैसे सब्ट्रैक्ट की, एक कॉर्नर की थी 36, उसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो आई गॉट 144। उसको हम लोग ने टोटल 6944 जो एरिया है रेक्टेंगल की उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6800 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ रिमेनिंग फील्ड का 6800 हमारे पास है। गॉट माई पॉइंट। फिर मैंने जो हमने अर्थ निकाली है 4 कोनों में से, उसका वॉल्यूम निकाल दिया, तो वॉल्यूम निकलता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। वो जो हमारे थे 6 सेंटीमीटर के क्यूब थे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216 एक का वॉल्यूम निकल रहा है। ऐसे 4 हम लोग ने कोने निकाले हैं, तो दैट विल बी 216 इंटू 4, दैट विल बी 864। अब मैं क्या करूँगी, जो वहाँ से वॉल्यूम निकाला है वही वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वही वॉल्यूम ऑफ मिट्टी मैंने रिमेनिंग प्लॉट पे बिछा दी है, तो रिमेनिंग प्लॉट की एरिया के ऊपर हम लोग ने वो वॉल्यूम बिछाया है, और हमको हाइट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग, मतलब हमने जो 4 कोने निकाले हैं उसमें से जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग प्लॉट में मेरा लेंथ और ब्रेथ और हाइट होगा, तो लेंथ और ब्रेथ तो मतलब एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6800 वहाँ पे डाल दें, इंटू हाइट आप वैसे ही रखें, इज इक्वल टू 864 आपका जो वॉल्यूम ऑफ 4 आपके कोनों का आया था, दैट इज देयर। फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइट। क्लियर किड्स? Next we have problem number 6, which says when length of each side of a cube is increased by 3 centimeter, its volume is increased by 2457. Find its side. Okay, let's see. हम लोग के पास each side पता नहीं है कितना है, तो let each side be x and volume will be x cube. ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपना साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज़ किया है, तो न्यू साइड मेरा बन जाएगा, कितना इंक्रीज़ किया है, 3 से इंक्रीज़ किया है, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो न्यू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का क्यूब, करेक्ट। Correct this, and now what they are saying that its volume is increased by 2457, मतलब पुराने वॉल्यूम और अभी वाले वॉल्यूम में डिफरेंस है कितना, 2457। तो मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में कर दूंगी, x प्लस 3 द होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2457। क्लियर? अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्यूब है, इसको आप ओपन करो आइडेंटिटी अप्लाई करके, तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 माइनस एक्स क्यूब, और ये वाला 2457 भी मैं इस तरफ लेकर आ रही हूँ, तो माइनस 2457 इज इक्वल टू 0। गॉट माई पॉइंट क्लियर? एक्स क्यूब आपका कट हो जाएगा, दैट विल बी 9x स्क्वायर प्लस 27x
plus 27 minus 2457, that will be minus 2430. Got the point? Is equal to 0. तो ये बन रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 9 कॉमन निकालेंगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स निकालो, 270 के ऐसे फैक्टर्स जिनके सब्ट्रैक्शन से 3 आए. सो वी विल गो फॉर एक्स क्यूब प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0. मतलब मैंने 18 और 15 फैक्टर्स ले लिया. इसमें से आपके दो ब्रैकेट्स बनेंगे, x प्लस 18 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अब आपको एक एक ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करना है, तो दैट विल बी x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. So x will be 15 and x plus 18 is equal to 0. So x will be minus 18. But we will not consider the minus wala number. Why? Because sign can the side of a cube cannot be negative. So we will go for x is equal to 15. So now you got x as 15. That is the side. Okay. Next we have प्रॉब्लम नंबर 7 विच सेज देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक जिसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं एंड इट कंटेन्स वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो एक रेक्टेंगुलर टैंक बना देते हैं और उसमें वाटर डाल देते हैं अप टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है. कितनी हाइट तक पानी डाला है? 6 सेंटीमीटर. बाकी डायमेंशंस क्या हैं? लेंथ है 30, ब्रेथ है 20 और टोटल हाइट है 12. क्लियर? अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द टैंक विथ इट्स वन फेस रेस्टिंग एट द बॉटम. इसके अंदर मैंने मेटल क्यूब डाल दिया है. ठीक है, आपने फिजिक्स में ये ज़रूर किया होगा. मेटल क्यूब डाला है और जिसका डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर ईच साइड. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर in liter that must be poured in a tank so that the metal cube is just submerged in a water. अब ये मेरा पानी 6 सेंटीमीटर तक है और जो क्यूब है वो 10 का है. ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ. तो मतलब ये 6 सेंटीमीटर तक पानी है और जो क्यूब अंदर पड़ा है वो 10 सेंटीमीटर का क्यूब है. मतलब 4 सेंटीमीटर उसको पानी नहीं मिला है. तो उसको सबमर्ज करने के लिए मुझे कितना पानी उसमें पोर करना पड़ेगा? मतलब 4 सेंटीमीटर हाइट तक मुझे पानी पोर करना पड़ेगा. लेकिन पानी हम लोग ऐसे ही नहीं पोर करते हैं, पानी का वॉल्यूम लेते हैं. सो वी विल टेक वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी पोर्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्योंकि वाटर आपका क्यूबॉइड शेप में है, क्यूबॉइड में पानी भरा हुआ है तो वो कंटेनर का शेप ले लेगा. तो कंटेनर का शेप लेगा तो हमको कंटेनर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ आपके पास है 30, ब्रेथ आपके पास है 20 और हाइट आप क्या लोगे? 4. क्योंकि जो हम लोग ने क्यूब इसके अंदर डाला है वो 10 सेंटीमीटर का क्यूब है. उसमें से 6 सेंटीमीटर तो आपका पानी है ही, बाकी कितना एक्स्ट्रा हाइट का पानी डालना है? तो 4 सेंटीमीटर. एंड दैट्स द रीज़न मैंने वहाँ पे 4 डाला है. सो दिस मच वाटर, दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इट शुड बी पोर्ड. Got my point? And that will be in centimeter cube, but you have to give the answer in liter. So you will get answer 2400 centimeter cube. But इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है. अब मैं आपको बता दूं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 1 ml. So 2400 centimeter cube will be I think 1 minute just. Now you have to convert centimeter cube to liters. So that will be 2400 divided by 1000 to convert into liters. So you will get 2.4 liters. Correct? Got my point clear? Next. Problem number 8, we have the dimensions of a solid metal cuboid are this. It is melted and recasted into cubes. तो आपको क्या करना है? कभी भी आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स या जो भी आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है, तो आपको लेना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे बिगर ऑब्जेक्ट आपका है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब
और जब आपके उसके डायमेंशंस आप दोनों के फॉर्मूला डाल दोगे एंड यू विल गेट द आंसर, उसमें से आपको जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द नंबर ऑफ क्यूब्स. गॉट माई पॉइंट. नंबर ऑफ क्यूब्स आपके आने के बाद यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सर्फेस ऑफ द क्यूब एट द रेट ऑफ 150 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको हर एक क्यूब को, नंबर ऑफ क्यूब्स आपके आ गए, अब आपको हर एक क्यूब को पॉलिश करना है. जब पॉलिशिंग होता है, क्यूब के डायमेंशंस क्या हैं, आपका 6 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, ठीक है, और इसको पॉलिश करना है. तो पॉलिश करना है मतलब सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका क्या है हम लोग का, 216 एक क्यूब का सरफेस एरिया है. और ऐसे आपके नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ से आएंगे. कितने आ रहे हैं, आई विल टेल यू. 750 आपके नंबर ऑफ क्यूब्स आएंगे. तो एक क्यूब का सरफेस एरिया 216 है, तो 750 का कितना होगा सरफेस एरिया, इट विल बी टोटल सरफेस एरिया विल बी 750 इंटू 216. करेक्ट. सो जो भी आपका टोटल सरफेस एरिया अभी आएगा उसको आपको कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. ओके. और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे ख्याल से आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन आपका कॉस्टिंग मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. यू हैव टू कन्वर्ट. सी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वो कन्वर्जन के साथ अगर आप जाएंगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर. Got my point clear? So first you have to find the number of cubes. Once you got the number of cubes, take out the surface area of each cube and multiply with the number of cubes. That will be your total surface area of all the cubes together, and that total surface area you have to multiply with your cost per unit. Next we have the dimensions of a rectangular box are given in ratio. Okay, ये आपको रेशियो में दिया हुआ है. तो दैट विल बी 4x आपका लेंथ है, 2x आपका ब्रेथ है, 3x आपका हाइट है. द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ पेपर एट 12 पर मीटर स्क्वायर एंड विथ पेपर एट 13.50 पर मीटर स्क्वायर इज 1248. अब आपको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ कवरिंग. कॉस्ट ऑफ कवरिंग का मतलब क्या होता है कि आप इसको कवर कर रहे हो. कवर कर रहे हो तो आप वॉल्यूम नहीं लोगे, आप लोगे सरफेस एरिया. ठीक है, तो सरफेस एरिया कैसे रहेगा हम लोग का, इट विल बी 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. अब आपको सब एक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो 2x ओके 4x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 4x. गॉट माई पॉइंट क्लियर. आपको इसको ओपन करना पड़ेगा. ये तीनों एडिशन में हैं और बाहर से 2 मल्टीप्लिकेशन में. ये जब आप पूरा ओपन करेंगे तो यू विल गेट 52x स्क्वायर मीटर स्क्वायर. ये आपकी सरफेस एरिया आएगी. अब बोला है कि सरफेस एरिया जो आप कॉस्ट कवर कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग है 12 पर मीटर स्क्वायर और एक कॉस्टिंग है 13.50 पर मीटर स्क्वायर. मतलब एक बार आप 52x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और एक बार आप 52x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 13.50 के साथ. और इनके कॉस्टिंग में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्टिंग के साथ तो इन दोनों के कॉस्टिंग में डिफरेंस आएगा 1248. गॉट माई पॉइंट. यू हैव टू मल्टीप्लाई, गेट द आंसर, यू विल गेट द डिफरेंस एंड देन यू विल गेट सम x स्क्वायर का वैल्यू. उसका रूट निकाल दो तो x आ जाएगा. आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स. जो वैल्यू आपकी x की आ रही है वो आपको 4x 3x और 2x में डालनी है. क्लियर.